وزیر اعظم اور زرداری میں ٹیلی فونک رابطہ، دونوں رہنماؤں نے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ وزیر اعلیٰ پرویز لاحق کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ نہ لینے اور دینے کے عزم کا اظہار کیا۔ پاکستان تحریک انصاف کے قومی اسمبلی کے 123 ارکان نے جمعرات کو اسپیکر کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ پی ٹی آئی ارکان اسمبلی 22 دسمبر کو خیبر پختونخوا ہاؤس اسلام آباد میں جمع ہوں گے۔ ارکان ممکنہ طور پر شاہ محمود قریشی کی سربراہی میں پارلیمنٹ آئیں گے۔ شاہ محمود قریشی ارکان کو لے کر اسپیکر کے سامنے پیش ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے خلاف عدم اعتماد کا معاملہ، اسمبلی میں نمبر گیم سامنے آ گئی۔ چودھری پرویز لاحق کو ایوان سے اعتماد کا ووٹ لینے میں چیلنج کا سامنا۔ پرویز لاحق کو اعتماد کے لیے 186 ارکان کے ووٹ درکار ہیں اور پنجاب اسمبلی کے 371 کے ایوان میں تحریک انصاف کے 180 ارکان ہیں، جبکہ تحریک انصاف کو مسلم لیگ کاف کے 10 ارکان کی حمایت بھی حاصل ہے۔ اس طرح پنجاب میں حکومتی اتحاد کو 190 ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی اپنی تمام ایم پی ایس کو لاہور میں موجود رہنے کی ہدایت۔ عمران خان نے قانونی ٹیم کا اہم اجلاس طلب کر لیا۔ اجلاس میں ملکی سیاسی صورتحال پر بات چیت ہوگی، جبکہ اسمبلی کے جاری اجلاس کے ہوتے ہوئے گورنر کی جانب سے نیا اجلاس طلب کرنے پر مشاورت ہوگی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی اپیل پر سماعت اگلے ماہ تک ملتوی کر دی۔ عدالت عالیہ میں عمران خان کی درخواست پر الیکشن کمیشن کی جانب سے عائد کیے گئے نااہلی کے فیصلے کے خلاف سماعت ہوئی۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے عمران خان کی درخواست پر سماعت کی۔ عمران خان کے وکیل بیرسٹر علی ظفر کے معاون نے عدالت میں سماعت ملتوی کرنے کی استدعا کی۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ سنا ہے کہ مودی کی پارٹی نے میرے سر کی قیمت 2 کروڑ روپے مقرر کی ہے۔ بلاول بھٹو نے نریندر مودی کو گجرات کا کسائی کہنے کے بیان کا دفاع کرتے ہوئے کہا کہ میں نے بھارتی وزیر اعظم سے متعلق تاریخی حقیقت دہرائی ہے۔ آپ ایمانداری کے ساتھ وزارت عظمیٰ نبھا نہیں سکے تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ جنرل باجوہ نے تو آپ کو ہر لمحے پہ ہر قدم پہ سہارا دیا، اور آپ جو بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی گھٹیا بات نہیں ہوتی کہ جس شخص نے آپ پہ احسان کیا ہو آپ اس کی احسان فراموشی کر کے آپ اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان حکومت چلا نہیں سکے تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے آپ کو ہر قدم پر سہارا دیا۔ عمران خان نے 4 سال میں تباہی کی جسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کرنے کا آخری کارڈ کھیلا، اب ان کے پاؤں سے آہستہ آہستہ زمین کھسک رہی ہے۔ امریکی ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے۔ امریکی ترجمان محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے پریس بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان امریکہ کا پارٹنر ہے۔ امریکی تاریخ میں پہلی بار کسی صدر کے خلاف کانگریس کی جانب سے مجرمانہ کارروائی کی ہدایت کر دی گئی۔ کانگریس کی کمیٹی نے امریکہ کے سابق صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف 4 مجرمانہ الزامات کی متفقہ طور پر سفارش کی ہے۔ رپورٹس کے مطابق 6 جنوری کو کیپٹل ہل پر حملے کے وقت لوگوں کو بغاوت پر اکسانے، سازش اور انصاف کی راہ میں رکاوٹ بننے کے الزامات شامل ہیں۔ لاہور سے اکاڑا جانے والی وین پتوکی میں دھند کے باعث حادثے کا شکار ہو گئی۔ حادثہ شدید دھند اور تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ گاڑی میں ایک ہی خاندان کے 14 افراد سوار تھے، جن میں سے خاتون سمیت 3 افراد جاں بحق اور 12 زخمی ہوئے۔
पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध, अहम मोटरवेज को बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से शेखपुरा तक शदीद धुंध के बायस बंद कर दी गई। लाहौर मुल्तान मोटरवे फैजपुर से समुद्री तक, जबकि लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 को भी धुंध के बायस बंद कर दिया गया। मोटरवे पुलिस की जानिब से शहरियों को मुहताज ड्राइविंग और गैर जरूरी सफर न करने की हिदायत की है। कोरोना के वार जारी, गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4021 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ, जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। शाहीनों को 70 साल में पहली बार होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बेन डक 82 और कप्तान बेन स्टोक्स ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। गुज़िश्ता रोज कराची टेस्ट के तीसरे दिन के अख्ताम पर पाकिस्तान के 167 रन के हदफ के जवाब में मेहमान इंग्लैंड ने 2 विकेट पर 112 रन बनाए थे। अस्सलाम वालेकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं नासिर मिनहास और मैं हूं अहमद बिलाल मंज। आइए आपको बराह रास्त लाहौर ले चलते हैं, जहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल प्रोजेक्ट था ये कि ऊपर पहाड़ी इलाकों के ऊपर साफ पानी डीसी ने भी बड़ा कोऑपरेट किया जी, डीसी ने भी। हाँ, थैंक यू जी। ये सर डॉक्टर यह वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। बुलेटिन में खुश आमदीद। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने अपने तमाम MPs को लाहौर में मौजूद रहने की हिदायत कर दी है। रहनुमा तहरीक इंसाफ इमरान खान ने कानूनी टीम का अहम इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल पर बातचीत होगी, जबकि असेंबली के जारी इजलास के होते हुए गवर्नर की जानिब से नया इजलास तलब करने पर मुशावरत होगी। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की अहम क़यादत का भी इजलास तलब कर लिया है, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ एतमाद के वोट और अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान सीनियर क़यादत से मुशावरत करेंगे। इजलास में तहरीक अदम एतमाद की कानूनी पहलुओं का भी जायजा लिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI इमरान खान की अपील पर समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। अदालत आलिया में इमरान खान की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से आयद किए गए नाअहली के फैसले के खिलाफ समाअत हुई। अदालत के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इमरान खान की दरख्वास्त पर समाअत की। इमरान खान के वकील बैरिस्टर अली जफर के मुआवन ने अदालत से समाअत मुलतवी करने की इस्तदा की। मुआवन वकील ने अदालत से इस्तदा की कि बैरिस्टर अली जफर मसरूफियात की वजह से आज पेश नहीं हो सकते, लिहाजा समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने मुआवन वकील की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत अगले माह तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने टेलीफोनिक राब्ता किया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी का टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, जिसमें दोनों रहनुमाओं ने मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल पर तबादला ख्याल किया है। दोनों रहनुमाओं ने PTI की हिमायत याफ्ता वज़ीर आला परवेज इलाही को ईवान से एतमाद का वोट न लेने और देने के अज़म का इजहार किया। गुज़िश्ता रोज चौधरी शुजात हुसैन के बेटे सालिक हुसैन ने आसिफ अली जरदारी से मुलाकात की थी, जिसमें वालिद का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया था। इलेक्शन कमीशन में PTI गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत के दौरान तहरीक इंसाफ के वकील अनवर मंसूर ने एतराजात उठा दिया। इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर राजा सुल्तान की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने गैर मुल्की फंडिंग केस की समाअत की। समाअत के दौरान PTI की जानिब से वकील अनवर मंसूर इलेक्शन कमीशन में पेश हुए। वकील अनवर मंसूर ने इतराज उठाते हुए कहा कि नोटिस इलेक्शन कमीशन ने नहीं, सेक्रेटरी ने 5 अगस्त को पॉलिटिकल पार्टी एक्ट के रूल 6 के तहत जारी किया।
नोटिस में नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर जारी किया गया है। नोटिस इलेक्शन कमीशन को जारी करना चाहिए था, सेक्रेटरी के पास इनके इजरा की अथॉरिटी नहीं। अनवर मंसूर ने कहा कि इलेक्शन कमीशन किसी भी सूरत हाल में किसी को भी अपनी अथॉरिटी नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात किसी मातहत अफसर को नहीं सौंपे जा सकते। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सवाल किया कि क्या काबीना के फैसले पर सब वजीर दस्तखत करते हैं? काबीना के फैसले के बाद काबीना की नहीं सेक्रेटरी के दस्तखत होते हैं। आप कहना चाहते हैं कमीशन के तमाम मेंबरान साइन करें। पीटीआई ने वकील से कहा कि मैंने एक दरख्वास्त भी दी है, गवाहान और शाहिदीन को बुलाना चाहता हूं। आपने शोकोज नोटिस दिया है जो नया प्रोसेस है। मुझे जराह में रिपोर्ट बनाने वालों और बैंक अफसरान को क्रॉस एग्जामिन करना है। दुरान समात मेंबर इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हम समझते हैं कि वो अमल मुकम्मल हो चुका। वकील अनवर मंसूर ने यह भी कहा कि शोकोज के बाद लाजमी हो गया है कि मैं जराह करूं, गवाहान भी लाऊं, इन अफराद से बात भी करूं, स्क्रूटनी रिपोर्ट में क्या हुआ। पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बज गई। इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर ने वकालतनामा जमा कराते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब जमा करा दूंगा। आपको एक बार फिर बताएं कि पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला इमरान खान के लिए खतरे की घंटी। इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी। जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर ने वकालतनामा जमा कराते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब जमा करा दूंगा। आपको बताएं कि पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला है इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बज गई। इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गोहर ने वकालतनामा जमा कराते हुए कहा कि आइंदा समाअत पर जवाब जमा करा दूंगा। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर उमर अवैस गर्देजी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी उमर, आगाह कीजिएगा, इस हवाले से आपके पास क्या तफसीलात हैं? उमर अवैस, आपको मेरी आवाज आ रही है? तफसीलात से आगाह कीजिएगा। उमर अवैस, क्या आप सुन पा रहे हैं? आपको बताएं कि पार्टी चेयरमैनशिप से हटाए जाने का मामला इमरान खान के लिए खतरे की घंटी बज गई। इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और समाअत 10 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जबकि इमरान खान के वकील बैरिस्टर गौहर ने वकालतनामा जमा कराते हुए कहा है कि आइंदा समाअत पर जवाब जमा करा दूंगा। आपको एक बार फिर बताएं कि पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का मामला इमरान खान के लिए खतरे की घंटी। इलेक्शन कमीशन से बड़ी खबर आ गई। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वजीर आजम इमरान खान को पार्टी चेयरमैनशिप के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है और समाअत को 10 जनवरी तक मुलतवी कर दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं हमारे चीफ रिपोर्टर सैयद उमर अवैस गर्देसी से। जी उमर, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज इलेक्शन कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को पार्टी चेयरमैन के ओहदे से हटाने के लिए दरख्वास्त पर जो फैसला था वो महफूज कर लिया है। इलेक्शन कमीशन में इमरान खान की नाअहली के लिए दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त गुजार मोहम्मद आफाक कमीशन के सामने पेश हुए और दरख्वास्त गुजार का जो कहना था कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से ने डिस्क्वालीफाई किया है। इमरान खान नाअहल हो चुके हैं और अगर तो वो नाअहल नहीं है और सादिक और अमीन की तारीफ पर वो अगर पूरा उतर रहे हैं तो मैं अपनी दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। लेकिन अगर वो जो कि इलेक्शन कमीशन का साबिका फैसला था कि इमरान खान नाअहल हुए तो फिर उनको पार्टी की जो चेयरमैनशिप है उससे हटाया जाए। जहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ कि इमरान खान की जानब से बैरिस्टर गोहर जो है उन्होंने आज ही अपना वकालतनामा जमा करवाया और आइंदा समाअत पर उन्होंने अपना जो जवाब है इमरान खान साहब की तरफ से वो जमा करवाने की भी बात की है। बहरहाल यहाँ पे एक बड़ी खबर ये थी कि इमरान खान को पार्टी जो चेयरमैनशिप से हटाने की इस वक्त जब बात चल रही है, इमरान खान के लिए एक खतरे की घंटी बज चुकी है और ये इलेक्शन कमीशन की एक बड़ी खबर है। इस वक्त मैं आपको बताता चलूँ कि इलेक्शन कमीशन ने समाअत जो है वो 10 जनवरी तक मुलतवी कर दिया और अब 10 जनवरी को ये पता चलेगा कि इमरान खान नाअहल होते हैं या फिर उनकी बचाव का कोई रास्ता निकल आता है। शुक्रिया उमर अवैस, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कौमी असम्बली के 123 अरकान ने जुमेरात को स्पीकर के सामने पेश होने का फैसला कर लिया। पीटीआई अरकान असम्बली 22 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में जमा होंगे। अरकान मुमकिना तौर पर शाह महमूद कुरैशी की सरबराही में पार्लियामेंट आएंगे। शाह महमूद कुरैशी अरकान को लेकर स्पीकर के सामने पेश होंगे। अरकान स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज अशरफ के रूबरू मुस्ताफी होने की तस्दीक करेंगे। गुज़िश्ता हफ्ते सुप्रीम कोर्ट में एक केस की समाअत के दौरान अदालत ने रिमार्क्स दिए थे कि तहरीक इंसाफ के अरकान इस्तीफा देने के बावजूद तनख्वाहें ले रहे हैं, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए बताया था कि इन्होंने स्पीकर परवेज अशरफ को पीटीआई अरकान के इस्तीफों की तस्दीक के लिए खत लिख दिया है। वजीर आला पंजाब के खिलाफ अदम एतमाद का मामला असम्बली में नंबर गेम सामने आ गई। चौधरी परवेज इलाही को ईवान से एतमाद का वोट लेने में चैलेंज का सामना है। परवेज इलाही को एतमाद के लिए 186 अरकान के वोट दरकार हैं और पंजाब असम्बली के 371 के ईवान में तहरीक इंसाफ के 180 अरकान हैं, जबकि तहरीक इंसाफ को मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान की हिमायत भी हासिल है। इस तरह पंजाब में हुकूमती इत्तेहाद को 190 अरकान की हिमायत हासिल है, जबकि पंजाब में अपोजिशन इत्तेहाद को भी 180 अरकान की हिमायत हासिल है, जिसमें मुस्लिम लीग नून के 167, पीपल्स पार्टी के 7 अरकान शामिल है, जबकि अपोजिशन इत्तेहाद में आजाद अरकान 5 और राह-ए-हक पार्टी का 1 रुकन शामिल है। रूल ऑफ प्रोसीजर के तहत वजीर आला के एतमाद के वोट में नून लीग के 18 अरकान वोट कास्ट कर सकते हैं। दूसरी जानिब वजीर आला पंजाब के एतमाद के वोट के मामले पर इजलास तलब करने से मुतालिक स्पीकर ने कानूनी माहिरीन से राय तलब कर ली। गवर्नर की तलब करदा इजलास को आइन के तहत स्पीकर पंजाब असम्बली बुलाता है, लेकिन असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से इजलास का ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। कानूनी माहिरीन से मुशावरत के बाद स्पीकर इजलास बुलाने या ना बुलाने का फैसला करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना बेटी टेरियान को कागजात में जाहिर ना करने पर नाअहली केस में चेयरमैन पीटीआई इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत दे दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ नाअहली केस की समाअत पर चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने समाअत की। समाअत के दौरान इमरान खान के वकील सलमान अकरम राजा एडवोकेट और इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए। इमरान खान के वकील ने अदालत को बताया कि इमरान खान की मुबैना बेटी टेरियान के मामले पर पहले ही फैसला हो चुका है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आप इससे मुतल्लिक अपना तहरीरी जवाब जमा करा दें। इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को बताया कि यह मामला कई बार पहले भी हमारे पास आ चुका है और दरखास्तें मुस्तरद होती रही हैं। दोनों फरीकैन की जानिब से दलाइल सुनने के बाद अदालत ने इमरान खान के वकील को तहरीरी जवाब जमा कराने की मोहलत देते हुए केस की समाअत 19 जनवरी तक मुलतवी कर दी। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि यूक्रेन जंग ने पूरे खित्ते की मईशत को मुतासिर किया है। आलमी बरादरी को खुराक का तहफ्फुज़ यकीनी बनाना होगा। आलमी खबर रिसां इदारे ब्लूमबर्ग से गुफ्तगू करते हुए वजीर खारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि पाकिस्तान को सैलाब के बाद आलमी बरादरी के ताउन की जरूरत है। सैलाब से पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर तबाही हुई। बिलावल भुट्टो का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में क़ब्ल अज़ वक्त इंतखाबात मुल्क की मफाद में नहीं है। इमरान खान के इलेक्शन की बात करना इंतहाई बदकिस्मती है। चेयरमैन पीटीआई बिला जवाज एहतजाज से मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर खारजा ने कहा कि भारतीय मुसलमान मोदी हुकूमत के तशद्दुद का शिकार बन रहे हैं। मोदी हुकूमत गुजरात में इंतहाई मुजालिम ढा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से वफाकी वजीर चौधरी सालिक हुसैन ने मुलाकात की, जिसमें पंजाब असम्बली की तहलील रोकने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल किया गया। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चौधरी सालिक हुसैन के दरमियान मुलाकात बिलावल हाउस में हुई, जो 45 मिनट जारी रही। इसी दौरान सालिक हुसैन ने आसिफ अली जरदारी को अपने वालिद चौधरी शुजात का खुसूसी पैगाम भी पहुंचाया। आसिफ जरदारी ने चौधरी शुजात की सियासी बसीरत की तारीफ की। सालिक हुसैन चौधरी शुजात को आसिफ अली जरदारी के जवाब से आगाह करेंगे। यहां वक्त हुआ ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने रहनुमा पीटीआई शहबाज गिल के खिलाफ दर्ज मुकदमे के खात्मे के लिए दायर दरखास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है।
بلوچستان ہائی کورٹ میں شہباز گل کے خلاف درج مقدمے کے خاتمے کے لیے درخواست دائر کی گئی ہے. یہ درخواست سابق وفاقی وزیر شہباز گل کے وکیل کی جانب سے بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کروائی گئی ہے. شہباز گل کے وکیل نے موقف اختیار کیا ہے کہ شہباز گل کے خلاف مقدمے کے خاتمے کی درخواست سماعت کے لیے منظور ہو گئی. پی ٹی آئی کے رہنما شہباز گل کے خلاف بلوچستان کے ضلع قلعہ عبداللہ میں مقدمہ درج ہے. وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ عمران خان حکومت چلا نہیں سکے تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے، جبکہ جنرل باجوہ نے آپ کو ہر قدم پر سہارا دیا. جس نے آپ پر احسان کیا ہو اور آپ اس کو گالیاں نکالیں. الیکشن کمیشن نے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا کہ عمران خان نے 4 سال میں تباہی کی جسے ہم ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پال نہیں سکے حکومت جو ہے، آپ حکومت چلا نہیں سکے، آپ ایمانداری کے ساتھ وزارت عظمیٰ نبھا نہیں سکے تو اس میں جنرل باجوہ کا کیا قصور ہے؟ جنرل باجوہ نے تو آپ کو ہر لمحے پہ ہر قدم پہ سہارا دیا. آپ کو جب بھی کوئی ضرورت پڑتی تھی وہ آتے تھے اور اسمبلی کے اندر انہوں نے میٹنگیں پرزائڈ کی، بریفنگز دی، سارا کچھ جس میں آپ موجود نہیں ہوتے تھے. اس وقت اعتماد کا یہ عالم تھا. اور آپ جو بات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی گھٹیا بات نہیں ہوتی کہ جس شخص نے آپ پہ احسان کیا ہو آپ اس کی احسان فراموشی کر کے آپ اس کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کریں جو لوگ جو ہے اپنے موسنوں کے متعلق استعمال کیا کرنا بلکہ عام انسانوں کے متعلق بھی وہ الفاظ نہیں استعمال کرتے. یہ 3 سال میں 4 سال میں یہ مصیبت جو ہے پاکستان کے گلے سے اتر گئی ہے. اگر یہ لمبا عرصہ یہاں پہ کاٹ لیتے تو شاید یہ ملک جو ہے وہ بچ نہ پاتا. یہ ملک جو ہے وہ اس وقت بھی جو ان کے 3-3.5 سال کے جو زخم لگے ہوئے ہیں اس ملک کے اوپر وہ زخم اس وقت بھی رچ رہے ہیں. ہم اس پہ مرہم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ اس وقت بھی چاہتے ہیں کہ یہ ملک جو ہے زخمی حالت میں ہے اور ان کی شاید یہ انٹینٹ ہے کہ میں حکمران ہوں تو یہ ملک رہے، اگر میں حکمران نہیں ہوں تو یہ ملک جو ہے بھاڑ میں جائے، یہ قوم بھاڑ میں جائے، یہ غربت کا شکار ہو جائے، یہ تباہی کا شکار ہو جائے. تو ایسی صورت میں ہم انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کی مدد سے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ہم یہ نہیں ہونے دیں گے. عدالتیں جو ہیں اگر ان کی مرضی کے مطابق کام. اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے کہا ہے کہ سیلاب زدہ پاکستان کی تعمیر نو کے لیے مضبوط عالمی تعاون کی ضرورت ہے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ انتونیو گوترس کا کہنا تھا کہ سیلاب کے فوری بعد پاکستان کا دورہ کیا تو وہاں سیلاب کے باعث بڑے پیمانے پر تباہی دیکھ کر پریشان تھا. سیلاب زدہ پاکستان کو تعمیر نو کے لیے مضبوط عالمی تعاون کی ضرورت ہے. پاکستان میں سیلاب سے 33 ملین متاثر 1700 سے زائد افراد جاں بحق ہوئے. انتونیو گوتریس نے کہا کہ پاکستان کی مدد کرنا عالمی برادری کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جنیوا کانفرنس میں سیلاب زدہ ملک کی تعمیر نو کے لیے امداد کو متحرک کیا جائے. پاکستان کی مدد کے لیے عالمی برادری کو قائل کرنے کی کوشش کروں گا. امریکی ترجمان محکمہ خارجہ نے کہا ہے کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد کو تیار ہوں. امریکی ترجمان محکمہ خارجہ نیڈ پرائس نے بریفنگ کے دوران کہا کہ امریکہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کی ہر ممکن مدد کو تیار ہے اور مشترکہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے پاکستان امریکہ کا پارٹنر ہے. ترجمان محکمہ خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان اور بھارت کے ساتھ کثیر الجہتی تعلقات ہیں. اپنے شراکت داروں کے درمیان تناؤ کم کرنا چاہتے ہیں اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. لینڈ پرائس نے مزید کہا کہ کشمیر پر دونوں ملکوں کو مل کر بات چیت کرنا ہوگی. ہمیں کہا گیا تو مسئلہ کشمیر پر کردار ادا کرنے کو تیار ہیں. گورنر پنجاب ولی الرحمان نے اسمبلی کا اجلاس بدھ کو طلب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پرویز لاہی کو ارکان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے خط لکھ دیا. گورنر پنجاب ولی الرحمان کے دستخط سے مراسلہ جاری کیا گیا ہے جس میں گورنر نے کہا کہ آئین کے آرٹیکل 130(7) کے تحت میں بدھ 21 دسمبر کو دوپہر 4 بجے پنجاب اسمبلی کا اجلاس طلب کرتا ہوں جس میں وزیر اعلیٰ اعتماد کا ووٹ لیں. مراسلے کے مطابق پنجاب اسمبلی کے ایوان میں حکومتی اتحاد اور اپوزیشن اتحاد میں بہت کم عددی فرق ہے. میں بطور گورنر اس بات پر متفق ہوں کہ وزیر اعلیٰ چودھری پرویز لاہی ایوان کی اکثریت کا اعتماد کھو چکے ہیں.
खत में मजीद कहा गया कि 17 दिसंबर को वज़ीर आला ने इमरान खान की जानिब से साबिक आर्मी चीफ के खिलाफ कमेंट्स देने पर इंटरव्यू में इमरान खान को खूब तनकीद का निशाना बनाया। वज़ीर आला का यह भी बयान था कि PTI की पार्टी पॉलिसी के खिलाफ था, जिस पर 2 अरकान मुस्ताफी भी हो गए हैं। वज़ीर आला चौधरी परवेज इलाही ने 4 दिसंबर को टीवी इंटरव्यू में कहा कि आइंदा मार्च तक असम्बली तहलील नहीं करेंगे। काबीना के एक रुकन सरदार हसनैन बहादुर दरेशक की काबीना इजलास के दौरान तल्ख कलामी हुई, जिस पर वो मुस्ताफी हो गए। गवर्नर की तरफ से जारी मरासले में मजीद कहा गया है कि यह भी इख्तलाफात का शाखसाना है कि वज़ीर आला ने एक रुकन पंजाब असम्बली ख्याल अहमद को काबीना में शामिल किया, लेकिन PTI चेयरमैन ने इसे लाइलमी का इजहार किया, जिससे दोनों जमातों में इख्तलाफात साफ जाहिर हैं। वफाकी वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अदम एतमाद का पुल अबूर करने दे, फिर PDM क़यादत दूसरे ऑप्शंस पर गौर करेगी। परवेज इलाही खुद कहते हैं 90% अरकान असम्बली तोड़ने के हक में नहीं। वफाकी वजीर ने कहा कि PTI क़यादत को होश के नाखुन लेने चाहिए, किसी पागल और जिद्दी के पीछे लगकर मुल्क को किसी हादसे का शिकार नहीं करना चाहिए। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को सियासी और माशी अदम इस्तेहकाम की नजर किया जाएगा। राना सनाउल्लाह का कहना है कि फवाद चौधरी साहब, आपके घर के हालात काफी खराब हैं, आप अपने घर की खबर लें, अपनी मंजी थल्ले डांग फेरें। राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि इमरान खान फितना है, इसे रोकना पूरी कौम का काम है। उनका मुस्लिम लीग नून के बानी रहनुमा से मुतल्लिक बयात करते हुए उनका कहना था, नवाज शरीफ की वापसी की तारीख नहीं दे सकता, लेकिन वो वापस जरूर आएंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहसिन शाहनवाज रांझा का कहना है कि इमरान खान ने इलेक्शन कमीशन में जमा करवाए गए गोशवारों में झूठ बोला। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि इमरान खान कहते रहे कि सब चोर और डाकू हैं, लेकिन खुद वो सबसे बड़े डकैत निकले। उन्होंने कहा कि अरबों रुपए की घड़ियों की गलत कीमत लगवाई गई, इलेक्शन कमीशन में झूठे हल्फनामे जमा करवाए। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान झूठ बोलते हैं, मकारी करते हैं और अब इनकी गलत बयानियां पूरी कौम के सामने आया हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ने दावा किया कि इमरान खान ने छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज तोशाखाना से चोरी की। उन्होंने मजीद कहा कि इमरान खान ने सियासत में आलूदगी फैलाई, उनकी इस करप्शन को अब कौम के सामने रखना होगा। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने यह भी कहा कि इमरान खान की गंदी सियासत को मुल्क की सियासत से निकालने का वक्त आ गया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि सरबराह पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद अहमद ने कहा है कि मुल्क मजीद सियासी अदम इस्तेहकाम और फाशिज्म की तरफ जा रहा है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर ट्वीट करते हुए शेख रशीद ने कहा कि पहले कहते थे असम्बलियां तोड़ें तो इलेक्शन करवा देंगे, अब खेलेंगे ना खेलने दें की पॉलिसी पर आ गए हैं। सियासी अना और जिद की वजह से मुल्क खसारे में जा रहा है। साबिक विफाकी वजीर का कहना था कि हुकूमत का एतमाद या अदम एतमाद इसके गले पड़ेगा और रसवाई भी इनको भुगतनी पड़ेगी। कौम के बिकने और बिकने वाले हर मेंबर पर नजर है। जनूबी वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला कर दिया, जिसके दौरान फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया। पुलिस राय के मुताबिक सिटी थाना वाना में और बागेचा चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों ने गुज़िश्ता रात हमला किया। पुलिस राय का बताना है कि 50 से ज्यादा दहशतगर्दों ने चेक पोस्ट पर हमला किया, जिसके दौरान फोर्सेस से फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द मारा गया, जबकि फायरिंग से एक सिक्योरिटी एहलकार भी जख्मी हुआ। जराये के मुताबिक पुलिस और FC की जवाबी कार्रवाई के बाद दहशतगर्द फरार हो गए, जबकि मारे गए दहशतगर्द की लाश तहवील में ले ली गई है। लाहौर से उकाड़ा जाने वाली वैन पत्तोकी में धुंध के बाइस हादसे का शिकार हो गई। हादसा शदीद धुंध और तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। गाड़ी में एक ही खानदान के 14 अफराद सवार थे, जिनमें से खातून समेत 3 अफराद जाँ बहक और 12 जख्मी हुए। रेस्क्यू जराये का कहना है कि खानदान के अफराद लाहौर से उकाड़ा जा रहे थे। हादसे में जख्मी होने वालों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिनमें से 4 की हालत तशवीशनाक है। वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी। वर्ल्ड बैंक के बोर्ड ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के इजलास में पाकिस्तान की माली मदद के लिए $1.6 अरब की मंजूरी दे दी गई। आलमी बैंक सिंध के सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए 5 मंसूबों के लिए फंड्स देगा, जिससे बहाली, मकानात की तामीर, फसलों की पैदावार
में मुआवनत की जाएगी। 2 मंसूबे और बच्चों के लिए सेहत की खिदमात के लिए होंगे। सिंध में सैलाब की हंगामी बहाली के लिए $50 करोड़ फराहम किए जाएंगे। वर्ल्ड बैंक मकानात की तामीर के लिए मजीद $50 करोड़, सिंध के ज़रिए शोबे के लिए $29 करोड़ फराहम करेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए $2 करोड़ फराहम किए जाएंगे। आलमी बैंक हेल्थ सेंटर का मंसूबों के लिए $2 करोड़ फराहम करेगा। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि सुना है कि मोदी की पार्टी ने मेरे सर की कीमत $2 करोड़ पे मुकर्रर की है। बिलावल भुट्टो ने नरेंद्र मोदी को गुजरात का कसाई कहने के बयान का दिफा करते हुए कहा कि मैंने भारतीय वज़ीर आज़म से मुतल्लिक तारीखी हकीकत दोहराई है। भारतीय मीडिया के मुताबिक बिलावल भुट्टो के खिलाफ बीजेपी के मकामी रहनुमा मुनुपाल बंसाल ने इश्तिहार अंगेज़ी की है। गैर मुल्की खबर इदारे के मुताबिक बीजेपी की जानिब से भारत में बिलावल भुट्टो के खिलाफ रैलियां निकाली गई हैं। न्यूयॉर्क में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने कहा था कि भारत को बताना चाहता हूं कि उसामा बिन लादेन तो मर चुका है मगर गुजरात का कसाई जिंदा है और भारत का वज़ीर आज़म बन चुका है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने कहा कि भारतीय हुकूमत गांधी की नहीं, गांधी जी के कत्ल के नजरियात पर यकीन करती है, हिटलर से मुतासिर है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला में गैर मामूली कमी हो गई। नवंबर में ओवरसीज कम्युनिटी ने सिर्फ $2 अरब 10 करोड़ पाकिस्तान भेजे। रवा माली साल की इब्तदाई 5 माह की औसत माहाना वर्कर्स तरसीलात तकरीबन 10% कम हुई। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की जानिब से ज़र मुबादला में गैर मामूली की वजह से दुनिया में महंगाई, ओपन मार्केट में डॉलर की कदर में फर्क आया। इसके अलावा मुल्क छोड़ने वालों के एहसास मुंतकली भी तरसीलात ज़र में कमी का सबब बने। चीन में गुज़िश्ता रोज कोरोना वायरस से मजीद 5 अमवात रिपोर्ट हुई हैं। चाइना नेशनल हेल्थ कमीशन के मुताबिक चीन के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना वायरस की आलमी वबा एक बार फिर जोर पकड़ने लगी है। गुज़िश्ता रोज चीन में कोरोना वायरस के 2722 केसेस रिपोर्ट हुए। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक चीन के अस्पतालों में कोरोना मरीजों का रश देखा जा रहा है। फार्मेसीज में से दवाएं गायब हैं जबकि सड़कें गैर मामूली तौर पर सुनसान हैं क्योंकि शहरी बीमार है या बीमारी से बचने के लिए घरों तक महदूद है। कौमी अदारा सेहत की जानिब से जारी करदा एदादो शुमार के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 4021 कोरोना टेस्ट किए गए, जिनमें से 8 अफराद के कोरोना टेस्ट मुस्बत आए। इसी तरह गुज़िश्ता 24 घंटों में किए गए मुस्बत कोरोना टेस्ट की शरह 0.20% रिकॉर्ड की गई। इसी दौरान कोरोना वायरस से कोई भी मरीज जाँ बहक नहीं हुआ जबकि 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। सर्दी की शिद्दत में इजाफा होते ही लंडा बाजार की रौनकें दुबाला हो जाती हैं, लेकिन महंगाई की शरह में इजाफे की वजह से इस साल लंडा बाजार की रौनकें वीरान हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे अरशद सावंत से जो इस वक्त लंडा बाजार में मौजूद हैं। बिल्कुल जी, जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होता है तो लंडा बाजार की रौनकें भी बहाल होना शुरू हो जाती हैं, लेकिन इस साल महंगाई की शरह में बहुत ज्यादा इजाफा होने के बाद लंडा बाजार वीरान पड़े हुए हैं। इसी हवाले से मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उनसे बात करते हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है। जी बिल्कुल, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा लंडे बाजार में बिल्कुल भी कस्टमर ना होने के बराबर है और महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो भी खरीददार लंडे में आता है रेट सुन के वापस चला जाता है। लिहाजा हमारी हुकूमत से अपील है कि प्लीज़ आप लंडे की वैरायटी के ऊपर जो टैक्स और चार्जेस लगा दिए हैं वो ख़त्म कर दें ताकि हम दुकानदार भी लोगों को आसानी से चीज़ें बेच सकें। जी, जैसा कि आपने दुकानदार की बात सुनी, उनका कहना है कि लंडा बाजार की वैरायटी पर जो अजाफी टैक्स और चार्जेस लगाए गए हैं उनको खत्म किया जाए ताकि करप्शन की अजब कहानी। शरकपुर शेखुपुरा बेहतरीन कारपेट रोड को उखाड़कर दोबारा 1 अरब 85 करोड़ की खतीर रकम से दोबारा सिंगल रोड ही तमीर किया जा रहा है जो सरकारी खजाने का नुकसान है। मजीद जानते हैं वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे फजल कयूम खान से। जी फजल, आगाह कीजिएगा। जी, मैं इस वक्त मौजूद हूँ शरकपुर नाजर इंटरचेंज के करीब कवियाबाद नाजर बाना में। यहाँ शरकपुर शेखुपुरा रोड को 1.5 अरब रुपए की खतीर रकम से दोबारा बनाने का काम शुरू हो चुका है। बड़ी ज़बरदस्त बनी हुई कारपेट सड़क को उखाड़ा जा रहा है और सुनने में आया है कि उसी सिंगल रोड को दोबारा बनाया जाएगा जो 1.5 अरब रुपए की खतीर रकम से बनेगी। मेरे साथ देहाती और शहरी मौजूद हैं, आइए उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं। जनाब, शरकपुर इंटरचेंज इसे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, इसको अखेरने का कोई फ़ायदा नहीं। आपको बार बार यही कह रहे हैं कि इसको डबल करो और बाकी को क्रीड नाला दो ताकि रोड सही हो सकता है। या सिंगल बनाने का कोई फ़ायदा नहीं, डबल करो डबल करो डबल करो। ਉਹੀ ਬਣਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੋ, ਉਧਰ ਆਵਾਮ ਸਲਾਬ ਨਾ ਮਾਰਦੀ ਪਈ ਏ, ਇਧਰ ਤੁਸੀਂ ਐਵੇਂ ਪੈਸੇ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ। ਬਰਹਾਲ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਰੋਡ ਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰੋ।
जैसा कि अवाम ने बताया कि बेहतरीन बनी हुई सड़क को उखाड़ कर दोबारा बनाना अवाम का और हुकूमत का नुकसान है। अगर इस सड़क को डबल किया। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से गैर मुल्की जरीदों के नुमाइंदगान की जमान पार्क में मुलाकात में सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी, फारूक हबीब और तर्जुमान वजीर आला पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद थी। मुलाकात में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल और मुस्तकबिल के लाएअमल पर सहाफियों से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इस बारे में मजीद जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफिर से। जी शेख जाफिर, आगाह कीजिएगा। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान से गैर मुल्की जरीदों के नुमाइंदगान की जमान पार्क में मुलाकात में सीनियर रहनुमा पीटीआई फवाद चौधरी, फारूक हबीब और तर्जुमान वजीर आला व पंजाब हुकूमत पाकिस्तान मुसर्रत जमशेद चीमा मौजूद थी। मुलाकात में पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल और मुस्तकबिल के लाए अमल पर सहाफियों से तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात करने वाले ज़राए इबलाग में अल जजीरा, BBC उर्दू, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, फ्रांस 24, शेनहाउ, राइटर्स, AP, इंडिपेंडेंट उर्दू, DW, अल अरेबिया उर्दू, इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी और दीगर गैर मुल्की खबर रसा इदारों के नुमाइंदगान मौजूद थे। इस मौका पर चेयरमैन इमरान खान का कहना था कि मुल्क की मुआशी सूरत-ए-हाल पर तशवीश है, इसलिए जल्द इम्पोर्टेड हुकूमत से जान छुड़ाने का फैसला किया है। मुल्क के तमाम इदारों से बेहतरीन तल्लुकात कबूल हैं, लेकिन गैर आईनी इकदामात नाकाबिले कबूल हैं। अवाम पर बढ़ती महंगाई के बोझ ने गुर्बत की शरह में कई गुना इजाफा कर दिया है। इमरान खान का मजीद कहना था कि आलमी दुनिया से बेहतरीन तल्लुकात के ख्वाह हैं, लेकिन मुल्की सालमियत पर किसी सूरत समझौता नहीं किया जाएगा। तर्जुमान हुकूमत पंजाब मुसर्रत जमशेद चीमा का कहना था कि मुल्क के एहतसाब कवानीन में तब्दीली से सियासी मुजरमान मुस्तफीद हो रहे हैं। गरीब दोस्त इक़दामात के लिए अवाम सिर्फ और सिर्फ इमरान खान। लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के हामी वकला उनके एजाज में इस्तकबालिया दे रहे हैं और वकला को इकट्ठा करके वोट और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। एडवोकेट हाईकोर्ट शहरियार डोगर और आफ्ताब शाह ने भी जोहर टाउन में बड़ा इस्तकबालिया दिया। देखते हैं आजम भट्ट की ये रिपोर्ट। लाहौर हाईकोर्ट बार एसोसिएशन और लाहौर बार एसोसिएशन के सालाना इंतखाबात की तैयारियां अरूज पर हैं। इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारान के हामी वकला इनके एजाज में इस्तकबालिया दे रहे हैं। वकला को इकट्ठा करके अपने अपने उम्मीदवारान के लिए वोट और सपोर्ट की अपील कर रहे हैं। ये सिलसिला जारी और सारी है। जोहर टाउन में एडवोकेट हाईकोर्ट शहरियार डोगर और आफ्ताब शाह ने हाईकोर्ट के सदारती उम्मीदवार चौधरी इश्तियाक खान और लाहौर बार एसोसिएशन के सदारती उम्मीदवार इंतजार हुसैन, रबिया बाजवा, हबीब चौहान और दीगर उम्मीदवारों के लिए एक बड़ा इस्तकबालिया दिया। इस मौका पर वकला की बड़ी तादाद मौजूद थी। शहरियार डोगर और आफ्ताब शाह ने वकला की मौजूदगी में इन उम्मीदवारों को अपना उम्मीदवार मुकर्रर किया और तमाम वकला से वोट और सपोर्ट की अपील की। इस मौका पर लाहौर बार और हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के उम्मीदवार ने बारी बारी वकला से खिताब भी किया और इन उम्मीदवार ने कामयाब होकर वकला के दरपेश मसाइल हल करने के वादे भी किए। लाहौर हाईकोर्ट की जानिब से राना आसफ एडवोकेट हाईकोर्ट को तौहीन अदालत की सजा सुनाए जाने वाला मौजू भी ज़ेरे बहस रहा। अब देखना यह है कि इन उम्मीदवारों के खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आपको बताएं कि जो दावा कर रहे थे आज वो इजलास बुलाने से भाग गए हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल और मेंबर सूबाई असम्बली पंजाब ख्वाजा इमरान नज़ीर इस वक्त हमारे नुमाइंदे अजमल जट के साथ पंजाब असम्बली में मौजूद हैं। उनका आईनी बहरान के हवाले से मजीद क्या कहना है जानते हैं अजमल जट से। जी अजमल बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा MPA ख्वाजा इमरान नज़ीर साहब जो कि जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून भी हैं। इनसे जानते हैं जो आज यहाँ पर आईनी बहरान के हवाले से जो यहाँ पे लाहे अमल जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से किया जाएगा, इस हवाला से हमें क्या बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं। इंशाल्लाह अभी आपने देखा है कि कल तक जो दावे कर रहे थे कि हमारे पास जनाब पूरा ऐवान इनके साथ खड़ा है, आज वो इजलास बुलाने से भाग गए हैं। और जब बंदा भाग जाता है तो आप समझदार आदमी हैं, आपको पता है इसका मतलब क्या है कि इनके पास 186 की फिगर ही नहीं है। अगर 186 अरकान इनके साथ खड़े होते तो ये इजलास बुला के इत्मीनान का वोट ले लेते, मसला क्या था उसमें। तो जब ये भाग रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि इनके पल्ले अब 186 अरकान नहीं रहे। और PTI चेयरमैन की जानब से भी कहा गया है कि असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ, डेट भी अनाउंस कर दी जाएगी। फिर उसके बावजूद ये इजलास करने से आपने अभी बताया कि भाग रहे हैं,
फिर इसकी क्या वजह? देखें, अदम एतमाद पेश होने के बाद अभी असम्बली नहीं तोड़ सकते और अब इनको एतमाद का वोट लेना ही लेना है, जो कि इनके पास यकीनन नहीं है। तो इंशाल्लाह ताला इनको भागने नहीं देंगे, इनको बिल्कुल भगाएंगे अल्लाह के फजल से। जी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा एमपीए ख्वाजा इमरान नज़ीर का कहना था कि हम इनको भागने नहीं देंगे, हम इंशाल्लाह इनके साथ पूरी। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबिक वफाकी वज़ीर मोहम्मद सिराई से चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुलाकात में सूबे में आला तालीम के फरोग के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। मज़ीद जान लेते हैं अपने डिप्टी ब्यूरो चीफ शेख जाफर से, जो इस वक्त हमारे साथ लाइन पर मौजूद है। जी बिल्कुल, वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही और साबका वफाकी वज़ीर मोहम्मद सिराई से चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन डॉक्टर मुख्तार अहमद की मुलाकात में सूबे में आला तालीम के फरोग के लिए किए जाने वाले इक़दाम पर तबादला ख्याल किया गया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि नौजवानों को दौरे हाजिर के तकाजों के मुताबिक सर्किट पीस टेक्नोलॉजी से रोशनास कराना वक्त की अहम जरूरत है। सूबे में स्किल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए नई यूनिवर्सिटियां बनाई जाएंगी, जबकि सूबे में स्किल्ड बेस्ड टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला का कहना था कि यूनिवर्सिटियों के टीचर्स के लिए यकसा पे स्केल मुतारफ कराने का जायजा ले रहे हैं, जबकि पे स्केल को उस्तादा की कारकर्दगी के साथ लिंक किया जाएगा। वज़ीर आला ने कहा कि माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर नौजवानों को फ्री जदीद कोर्स कराए जाए, ये क्योंकि तालीम के मैदान में नए और जदीद रुझानात को अपना कर ही हम दुनिया का मुकाबला कर सकते हैं। दुनिया में टेक्नोलॉजी हर लम्हे बदल रही है, हमें भी हायर एजुकेशन को जदीद तकाज़ों से मांग करना होगा। इस ज़मन में पंजाब हुकूमत मुकम्मल सपोर्ट करेगी, जबकि यूनिवर्सिटियों में गवर्नेंस को बेहतर बनाने के लिए हायर एजुकेशन कमीशन की सिफारिशात पर भी अमल दरामद किया जाएगा। यूनिवर्सिटी के मामला दुरुस्त करने के लिए एडहाक अज़म का खात्मा जरूरी है। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि यूनिवर्सिटियों में रिसर्च के हवाले से बहुत काम की जरूरत है। जी शुक्रिया शेख जाफर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। बुलेटिन में आगे बढ़ते आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने सूबा भर में क्रिसमस और यौम-ए-कायद तकरीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हदायत जारी कर दी। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब सीसीपी लाहौर तमाम आरपीओज, सीसीपीओज और डीपीओज को सख्त इक़दाम यकीनी बनाने की हदायत की। आपको बताएं कि आईजी पंजाब ने सूबा भर में क्रिसमस और यौम-ए-कायद तकरीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हिदायत जारी कर दी हैं। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब सीसीपीओ लाहौर तमाम आरपीओज, सीसीपीओज और डीपीओज को सख्त इक़दाम यकीनी बनाने की हिदायत की है। आपको एक बार फिर बताएं कि आईजी पंजाब ने सूबा भर में क्रिसमस और यौम-ए-कायद तकरीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए हदायत जारी कर दी। एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब सीसीपी लाहौर तमाम आरपीओ, सीसीपीओ और डीपीओज को सख्त इक़दाम यकीनी बनाने की हदायत कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद हमारे चीफ क्राइम रिपोर्टर वसीम साबिर से। जी वसीम, बताइएगा क्या इक़दाम उठाए गए अब तक? देखें, आईजी पंजाब ने सूबा भर में क्रिसमस और यौम-ए-कायद तकरीबात की फुल प्रूफ सिक्योरिटी के लिए जो है वो हदायत जारी कर दी है। और इसी तरह से एडिशनल आईजी जनूबी पंजाब सीसीपीओ लाहौर तमाम आरपीओ, डीपीओ, सीपीओ को जो है वो सिक्योरिटी सख्त इक़दाम यकीनी बनाने की हदायत की गई है। और लाहौर समेत सूबे के तमाम बड़े शहरों में क्रिसमस तकरीबात के लिए जो है वो खुसूसी इंतजाम किए जा रहे हैं। बानी पाकिस्तान की बात की जाए तो कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के यौम पैदाइश की तमाम तकरीबात को जो है वो बेहतरीन सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। जबकि आईजी पंजाब का कहना था कि क्रिसमस नाइट की मुनासबत से लगाए जाने वाले क्रिसमस बाजार की सिक्योरिटी को भी मद्देनजर रखा जा रहा है। और सूबे के तमाम इजला में मसीह इबादत गाहों और पब्लिक मुकामात को 3-4 दर्जाती सिक्योरिटी फराहम की जा रही है। एक कैटेगरी चर्चिस में वॉक थ्रू गेट, स्कैनर्स की तनसीब और मेटल डिटेक्टर से जामे तलाशी हर सूरत जो है वो यकीनी भी बनाई जा रही है। जबकि खवातीन की बात करें तो खवातीन शहरियों की सहूलत के लिए लेडी पुलिस एहलकार मसीह इबादत गाहों और पार्क में सिक्योरिटी पर तैनात की जाएंगी। आईजी का कहना था कि तफरी मुकदमात पर जो है वो बिलखसूस पार्कों, पिकनिक पॉइंट की सिक्योरिटी के लिए इजाफी नफरी तैनात की गई है। चर्च के बाहर गाड़ियों की तलाशी के साथ साथ पार्किंग के लिए मुनासिब फासले पर जो है वो मकबूल इंतजाम भी किया गया है। और आईजी पंजाब का ये भी कहना था कि गैर मुल्की दिफादर और शहरियों की सिक्योरिटी के लिए एसओपीज के मुताबिक तमाम वसाइल जो है वो बरूए कार भी लाए जा रहे हैं। जबकि स्पेशल ब्रांच और सिविल डिफेंस के ताउन से क्रिसमस प्रोग्राम के तमाम मुकामात की सिक्योरिटी क्लीयरेंस को यकीनी बनाया जाएगा। जिला इंतजामिया की अगर बात करें तो जिला में जिला अमनो बैन के अलमजहब आहंग की कमेटियों समेत जो है वो मुतलका अदारों की तजावीज को सिक्योरिटी प्लान में मद्देनजर रखा जा रहा है। जबकि डॉल्फिन और पीरू की टीमें मसीह इबादत गाहों के गिरदोनवा में पेट्रोलिंग जारी रखेंगी। और इसी तरह से हिसाब पॉइंट पर क्विक रिस्पॉन्स और अलर्ट
टीमें जो है वो इमरजेंसी एक्शन के लिए तैयार है, बिल्कुल उनको भी तैनात किया गया है। और क्रिसमस सिक्योरिटी इंतजाम की निगरानी के लिए रीजनल और जिलाई सतह पर जो है वो ज्वाइंट रूम जो है। वसीम साबिर, आपने तफसीलन आगाह किया, आपका बेहद शुक्रिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब अब्दुल्ला खान सुंबल ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को गन्ने के काश्तकारों को वाजबात की बरवक्त अदायगी और यूरिया खाद की सरकारी निर्खों पर दस्तयाबी यकीनी बनाने से मुतल्लिक हिदायत जारी कर दी हैं। उन्होंने ये हिदायत सिविल सेक्रेटेरिएट में डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स की वीडियो लिंक इजलास की सदारत करते हुए की। इजलास में ज़राअत और खुराक के महकमों के एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर्स और डिप्टी कमिश्नर लाहौर और मुतल्लिका अफसरान ने शिरकत की, जबकि तमाम डिविजनल कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स बजरिया वीडियो लिंक शरीक हुए। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि हुकूमत किसानों के हकूक का हर सूरत तहफ़्फ़ुज़ करेगी और शुगर मिलों के खिलाफ गैर कानूनी कटौतियों और अदायगियों में ताख़ीर पर सख्त एक्शन लिया जाएगा। इन्होंने यूरिया खाद की स्मगलिंग की रोकथाम के लिए सख्त इक़दाम उठाने की हिदायत भी की है। इन्होंने कहा कि यूरिया खाद की तलब, रसद और कीमतों पर कड़ी नजर रखी जाए। चीफ सेक्रेटरी ने डिप्टी कमिश्नर को हुक्म दिया कि हाउसिंग सोसाइटियों को मंजूरी सिर्फ क़वायद के मुताबिक दी जाए। इन्होंने कहा कि रवा माली साल के दौरान करीब मुद्दत में 217 अरब रुपए के रिकॉर्ड तरक्याती फंड्स का इस्तेमाल किया गया। तरक्याती मंसूबों में फंड्स का बरवक्त इस्तेमाल, मेयार और शफाफियत को यकीनी बनाया जाए। लाहौर में मसीही बरादरी के त्यौहार की तैयारियों के हवाले से इजलास मुनक्किद हुआ। डिप्टी कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली की जेर सदारत इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर मसीही कम्युनिटी के डॉक्टर मजीद एबल, उलमा कराम, हिंदू सिख कम्युनिटी के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में क्रिसमस डे की तैयारियों के हवाले से इंतजाम का जायजा लिया गया। जिला इंतजामिया लाहौर क्रिसमस के हवाले से मसीही बरादरी के इंतजाम करेगी। DCO लाहौर का कहना था कि क्रिसमस ग्रांट के मंजूरी होने पर उसको तकसीम किया जाएगा। तमाम चर्चों में सफाई सुथराई का मुनासिब इंतजाम किया जाएगा। अहम मसीही आबादियों में सफाई सुथराई को यकीनी बनाया जाएगा। सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की जेर सदारत लोकल गवर्नमेंट बोर्ड का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें सेक्रेटरी बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन ने लोकल गवर्नमेंट बोर्ड के 10 मुलाजमीन को अगले ग्रेड में प्रमोट कर दिया। तरक्की पाने वालों में मोहम्मद नईम, सिदरा जफर, एहतशाम मलिक, अंसर महमूद, सब्तैन हैदर बुखारी को ग्रेड 17 में तरक्की दी गई है। तर्जुमान लोकल गवर्नमेंट के मुताबिक नवीद अशरफ, सैयद फराज हुसैन मेहदी, मोहम्मद शबीर, वकास हमीद, तारिक महमूद सिंधु को ग्रेड 17 में तरक्की दे दी गई, जबकि ग्रेड 17 में प्रमोट होने वाले अफसरान का ताल्लुक एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल यूनिट से है। एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनल यूनिट के 10 मुलाजमीन को तरक्की दे दी गई। सेक्रेटरीट बल्दियात सैयद मुबशर हुसैन की जेर सदारत इजलास में अफसरान की प्रमोशन समेत 11 निकाती एजेंडा जेर बहस आया। बोर्ड के इजलास में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट बोर्ड एडमिन ऑफिसर, बोर्ड लॉ डिपार्टमेंट और फाइनेंस डिपार्टमेंट के नुमाइंदगान ने शिरकत की। CTO लाहौर डॉक्टर असद मलही का लाइसेंसिंग टाउन माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन। सादालो शहरियों से लाइसेंस के इवज पैसा बटोरने वाले टाउन के खिलाफ मुकदमा। आबिद नामी एजेंट के खिलाफ थाना मनावा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया। टाउन ने शहरियों से ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के एवज 10,000 रुपए बटोरे थे। इंचार्ज अबू बकर सदीक ने बताया कि टाउट शहरियों को ड्राइविंग लाइसेंस का झांसा देकर पैसे वसूल करता था। CTO लाहौर का कहना था कि रवां साल के दौरान 30 से ज्यादा टाउटों के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। सादालो शहरियों से लाइसेंस बनवाने का झांसा देकर पैसे बटोरने वाला टाउटों के खिलाफ खुफिया क्रैकडाउन किया जा रहा है। शहरी किसी भी किस्म की रहनुमाई, मालूमात और ऐसे अफराद की निशानदही के लिए हम वक्त मेरे ऑफिस से तशरीफ ला सकते हैं। लेस्को के मुख्तलिफ शोबाजात से ताल्लुक रखने वाले 10 अफसरान को ग्रेड 18 पर टाइम स्केल अपग्रेड कर दिया गया है। इस हवाले से लेस्को हेडक्वार्टर में मुख्तसर तकरीब का इनेकाद किया गया, जहां चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने अपग्रेड होने वाले अफसरान में लेटर्स तकसीम किए। इस मौका पर HR डायरेक्टर, ऑपरेशन डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कस्टमर सर्विसेज डायरेक्टर और चीफ इंजीनियर और ND डिस्ट्रीब्यूशन और चीफ इंजीनियर T&G ने भी शिरकत की। इस मौका पर चीफ एग्जीक्यूटिव चौधरी मोहम्मद अमीन ने तमाम अपग्रेड होने वाले अफसरान को मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि इससे कबल हमने ग्रेड 18 से ग्रेड 19 और अब 17 से ग्रेड 18 अपग्रेडेशन मुकम्मल की है। उनका कहना था कि लेस्को अपने अफसरान की बेहतरी और तरक्की के लिए मुकम्मल तौर पर कोशा है। उनका कहना था कि ये लेस्को में एक आम तासुर पाया जा रहा था कि अब प्रमोशंस और अपग्रेडेशंस नहीं होगी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने और मेरी टीम
और HR डायरेक्टोरेट ने इस जिम्मे में बहुत मेहनत की और इंशाल्लाह हमारी कोशिश है कि 31 दिसंबर तक प्रमोशंस और अपग्रेडेशंस मुकम्मल कर ली जाएंगी। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी सदर के खिलाफ कांग्रेस की जानिब से मुजरिमाना कार्रवाई की हिदायत कर दी गई। कांग्रेस की कमेटी ने अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ 4 मुजरिमाना इल्जामात की मुतफिका तौर पर सिफारिश की है। 6 जनवरी को कैपिटल हिल पर हमले के वक्त लोगों को बगावत पर उकसाने, साजिश और इंसाफ की राह में रुकावट बनने के इल्जामात शामिल हैं। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान की रिपब्लिकन रुकन लिज चेनी ने कहा है कि सबसे शर्मनाक अमल ये था कि जब कैपिटल हिल पर हमला किया जा रहा था और सदर ट्रंप ऑफिस के डाइनिंग रूम में बैठे टीवी पर बगावत के मनाजिर देख रहे थे। जापानी समुंदर के साहली इलाकों में सर्द मौसम की लहर के बायस शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। जापान के निगाता प्रीफेक्चर और फुकुशिमा प्रीफेक्चर में रिकॉर्ड बर्फबारी हुई। मुतअद्दिद हाईवेज पर गाड़ियां कई घंटे फंसी रहीं और बुलेट ट्रेन सर्विस भी मुतासिर होने का खदशा है। निगाता में बर्फबारी के बायस 20,000 से जायद घरों को बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई है। जापानी महकमा मौसमियात ने तो होको और होकोरिको रीजन में आज भी बर्फबारी जारी रहने की तवक्का जाहिर की है। महकमा मौसमियात ने शहरियों को ट्रैफिक और दीगर मसाइल के लिए अलर्ट रहने की हदायत भी की है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 70 साल में पहली बार होम ग्राउंड पर टेस्ट सीरीज में 3-0 से व्हाइट वॉश कर दिया। इंग्लिश क्रिकेट टीम ने 167 रन का हदफ 2 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंग्लैंड के बेन डकेट 82 रन और कप्तान बेन स्टोक्स ने 35 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली। गुज़िश्ता रोज कराची टेस्ट के तीसरे दिन के इख्तिताम पर पाकिस्तान के 167 रन के हदफ के जवाब में मेहमान इंग्लैंड ने 2 विकेटों पर 112 रन बनाए थे। पाकिस्तानी टीम दूसरी इनिंग्स में 216 रन पर आउट हुई। कप्तान बाबर आजम 54 और सऊद शकील 53 रन बनाने पे कामयाब रहे, जबकि इंग्लैंड के रेहान अहमद ने इनिंग्स में 5 और मैच में 7 विकेटें हासिल की। पाकिस्तान के 167 रन के हदफ के ताक़ुब में इंग्लिश बैटर्स ने धुआंधार बैटिंग की, लेकिन मैच तीसरे रोज मुकम्मल न कर सके। न्यूज स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों से बखबर रहने के लिए देखते रहिए कोहिनूर न्यूज।